I'm in conversation with the legendary Annu Kapoorji, who is in Dubai today, and he's going to be. You'll be hearing him more often. The entire Middle East will be hearing him. He'll be on our airwaves soon with Big FM, and his show is going to be called The Golden Times. And the Golden Times, I've made it. So Golden Times, we'll start with the show. The Golden Times, do you see this is the golden time of Indian cinema, or have there been different golden times over the years? The moment anybody thinks that this is my golden times, and that is the end of that golden times. Golden times is just a fake phenomena which never comes. Okay. Utopia is also a fake concept which will never come. Okay. So it's very existentialist. Yeah. This philosophy. Yeah. So, but we try our level best to bring the golden moments. This is my name of my show. Name of my show is Golden Times with Annu Kapoor, and I try my level best to narrate stories from India, Pakistan, and other countries like Iran and Afghanistan and Bangladesh and Nepal and Sri Lanka, to cater all the people from these different countries, because cinema has been the prime medium of entertainment, at least for Bharat and Pakistan, Nepal, Bangladesh. So this is on Big FM 106.2. We are starting the show from 16th September, Monday to Wednesday at 9 p.m. to 11 p.m. I am very intrigued too. I think you would have a huge library, and you read a lot, and you keep updating a lot, because you said that you're not too much into consuming other media. Yeah. But I'm sure you read a lot, and Yeah. you have an extensive collection of books. Yeah, definitely. But nothing to brag about, because it's this vast ocean. You learn, and then just forget everything. Yeah. Just unlearn yourself. So I'm just going to tell you a story. Yes, of course. And please don't misunderstand me that I'm trying to give you a hint of something, or in a very subtle manner I'm giving you an indication of being someone, but just a story. One fine day, the disciples of great Socrates. Socrates is one of the most important philosopher from the Western world, or rather the Western philosophy is based on the great Socrates. So his disciples came to him and said, they say, Master, there's an oracle from the temple of Delphi that Socrates is the wisest man on this earth. What do you have to say? Socrates said the pronouncement from the temple of Delphi that Socrates is the wisest man, most wise man on this earth, is absolutely right. Socrates is the wisest man on this earth because he knows that he knows nothing. He knows that he knows nothing. So Pablo Neruda also said, pure nonsense, pure wisdom of someone who knows nothing. And to know nothing and to think that you know nothing is, I'm too insignificant man, too illiterate man, what a rogue and slave peasant am I to claim anything. But I just thought about this story. But nothingness is also used a lot in spirituality, where you come back to a space where you feel there is nothing and you start again. Yeah. It's an unending process. Like the myth of Sisyphus? Yeah, maybe yes.
Existence is a fierce battle, like I was telling. Yeah. It ends with the death of a person. It So ends what is with happiness? Where does happiness come happiness. in all of this? We always searching for the happiness is the sign of one basic element that we know knowingly or unknowingly that the existence is not a bliss but a curse. Why you are running after peace? Because you know that life is so Limited. and so with so much Finite. disturbances, Hmm. so many miseries, Hmm. agonies. Hmm. That's why peace, happiness becomes prime element. Because you know, yaar, nahi hai to jana hai yaar. Hmm. Unknowingly or knowingly. You don't have to be a philosopher to know it. Why you want to go and enjoy in a discotheque bar and dance? Why? Why you're looking for Because happiness? you're talking about finite. Life is finite. It's not infinite. So you know that it's momentary. Yeah, but you go. I'm not saying you should not go. Yeah. I'm nobody to stop you. But the mere sign of you going for the enjoyment somewhere else is the proof that knowing or unknowing, Absence is present. subconsciously or consciously, you know, you are looking for happiness. Happiness is not. Looking for you. Very simple बात है, कोई बात नहीं, Right. no problem. And this is the way it is. Yeah. हम काम करते हैं, हम कहानियाँ सुनाते हैं जी. कि उससे हमें पैसा मिलता है. पैसा हमारी जिंदगी में बहुत सारे Problems कंफर्ट्स are- कंफर्ट्स बढ़ा देता है, हमारी बॉडी में कंफर्ट्स बढ़ा देता है, लेकिन रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है. Right. ये भी है सही बात. अच्छा, आपको लगता है कि लिटरेचर जो है, large body of literature, जिससे आप you come from that space. Also, you come from the space of music. You come from the world of linguistics, a lot of languages that you know. So all of that, when you say a few lines, become rich with the life you led. So this is why the wealth of knowledge is so important when you speak it, because it comes from the tunnels of all these different influences in your life. So that's why do you think literature today is so relevant, so important to be reiterated and spoken about more than language? Do you see that it's so important to address literature, which is missing today because people have stopped reading as much? I will try to share what I have learned. People have stopped reading books. Now, whatever you read here on social media, sometimes you must check all the time, rather, validity of that. The veracity, the validity. Yeah. Because anybody can write any story. Yeah. Whether the story is just a fiction or just you never know. Figment of your imagination. Yeah. You don't- Okay, nothing wrong. But ये जो आपका imagination का जो part है, वो कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ क्या करने जा रहा है, किसको भड़क मारने जा रहा है. Unbridled. And social media पे you have every right to comment. Everybody can comment. ये जो fraction of moment का जो है, वो अपनी जगह पे है. लेकिन when you read a book, you prepare a script, a manuscript, you submit to a publisher, and the publisher and his team goes through a process, Yes, whether it is worth of this doing Publishing it. or not. Yeah. It means It's a if you are a process. publisher and I come forward, I bring an offer. manuscript. A manuscript. Your team will go through it. You will evaluate whether it is worth for your production company to publish this book or Or not. not. Yeah. And you will look whether this will be good commercially or not. Also. Yeah. So it goes through processes of different levels. Thus, this book becomes, this book, when approved by you, Yeah.
becomes more. Stronger, valued, Yes. and it's more work in it. There's so much of That's work right. in it. Many minds, many brains evaluate and assess whether it is worth or not. But here I can write anything about you. Why you are wearing this साड़ी? वो साड़ी पहन के आ गई, एक लंबी बिंदी लगा के आए, कोई भी कुछ कह दो यार, तो क्या फर्क पड़ता है? उसका अपना ठीक है, आपको बोलने की आजादी मिल गई है कि आपने कहा कि आजादी है हमें बोलने की, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये डिजर्व करते हैं। नहीं, but that's exactly what it is today. सोशल मीडिया में आपकी करेंसी आपकी लाइक्स हैं। है जी। आपकी जो करेंसी है, जिस तरह से आपको तोला जाता है, इज योर लाइक्स। आप लोगों को, एक्टर्स को कास्ट किया जाता है क्योंकि उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग हाई है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली फिल्म को प्रमोट कर देंगे, यानी वो पब्लिसिटी कर लेंगे, मार्केटिंग कर देंगे। तो ऐसे ही कोई इन्फ्लुएंसर को उसके बाद भी फिल्में आपको चलती मालूम है सक्सेस का रेट अभी भी कितना है? नॉट इवन 5%। नॉट इवन 5%। लेकिन अगर आपकी फिल्म ठीक ठाक है, आपने बिजनेस ठीक ठाक कर लिया, सो इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म हैं आपके पास उस अपने प्रोडक्ट को बेचने के और पैसा कमाने के कि आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट मान लीजिए 7 करोड़ का है और आपने उसकी गोटियां सही खेली, आपके पास बहुत सारे OTT के प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ले लेंगे। लेकिन अगर आपका 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है और बनाया 10 करोड़ का है और चैनल को आपको लगा कि ये तो 5 करोड़ का माल है, आप नहीं, गड़बड़ है, वो लॉन्ग रन में लग जाएगा आपको। बहुत सारी देयर आर मेनी फिल्म्स जिसको आप पेपर के ऊपर कह सकते हैं कि अरे उनका बजट 75 करोड़ था लेकिन 153 करोड़ कमा लिया, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो फिल्म 3 साल में बनी है। 3 साल का इंटरेस्ट पकड़ो, बस they don't talk about that. Marketing doesn't talk about मार्केटिंग ये सब बात नहीं करती है। मार्केटिंग को हिट बनाना है, लेकिन असल में तो आपके बैंक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब पता पड़ जाएगा आपको एज ए प्रोड्यूसर। मैं नहीं चाहता कि आप एज ए प्रोड्यूसर कभी आप फ्लॉप फिल्म आपकी हो, लेकिन फिर भी आपको सब पता होता है। लेकिन प्रोजेक्ट तो ये करना है, मेरी फिल्म सुपर चलिए, I'm a winner. Yeah. The winning streak is always very addictive. इसीलिए जो मार्शी लैंड के ऊपर जो सारा बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं वो थोड़ी लॉन्ग रन में जाके खतरनाक हो सकती हैं। और जो सीरियस बिजनेसमैन है, आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, वो सब नहीं, वो ये सब नहीं करते। उनका अपना डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का इतना है, बस इससे ज्यादा कहते तू ये है मार्केटिंग का, ये PR प्रमोशन का इतना पैसा है, बस इससे ज्यादा नहीं है। उसको मालूम है, जो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर है उसको मालूम है क्या है, जो बिजनेस करने यहाँ पे बैठा हुआ है उसको मालूम है। लेकिन अब शौक से है, मेरे को एक्टिंग का बहुत शौक है आपको। आपने कौन सी ऐसे रोल्स को, just to say, is it difficult for you to say no to projects? और आपने you happy to say no? हाँ, or happy to say yes? नहीं, कुछ नहीं है। यस को हैप्पी कहने के, मेरे को पैसा अगर सही मिलेगा तभी मैं यस करूंगा ना जी। सो नो कहने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी मैंने इस साल 2-3 फिल्मों को, मतलब अब तो मैं अपने क्रिएटिव टीम को के ऊपर भड़क गया कि तुमने पूरा एक मेरा सिस्टम है मेरे ऑफिस का, कोई भी एक स्क्रिप्ट आती है, मैं नरेशन नहीं लेता, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। आप मुझे नरेट अगर स्टोरी कर रहे हो तो फिर जो नरेट किया है वही बनाना, लेकिन बनाना तो आप तो स्क्रिप्ट बनाओगे, स्क्रिप्ट का मैं जो आपको नरेट कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है सर ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया, यही बनाओगे ना, आपके कुछ और है, लेकिन पूरी फिल्म तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। पूरी फिल्म तो आपको स्क्रिप्ट जब तक देनी पड़ेगी, देना पड़ेगा, आपका असिस्टेंट मांगेंगे तो वो स्क्रिप्ट का है, इसलिए मैं स्क्रिप्ट हो गया। एक 2 पेज का एक स्टोरी लाइन दे दो, सिनॉप्सिस फिनॉप्सिस बकवास लिखते हैं लोग, उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा लिख के थीमेटिक वो कराए, एंड व्हाट विल हैपन, शी इज स्ट्रगलिंग, अरे यार ये जो वर्ड्स के अंदर मत फंसाओ मेरे को लफ्ज़ियों में। तो मेरी टीम जो है वो स्क्रिप्ट पढ़ती है, फिर मुझे आके बोलते कि सर हाँ ये वर्थ डूइंग है। मैं तो फिर हमारे जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है उनसे बात होती है, वो सब हो गया, फिल्म हो गई, अच्छा ठीक है, डेट्स हो गई, उनको जो डेट्स चाहिए, क्योंकि शूट से पहले भी प्रेपरेशन की भी डेट्स होती हैं जी।
लुक टेस्ट होता है, कॉस्ट्यूम टेस्ट होता है, एक रिहर्सल का होता है, जैसे आजकल वर्कशॉप कहने लगे, नई भाषा हो गया। मैंने कहा वर्कशॉप के यहाँ रंदा लेके कारपेंटरी का वर्कशॉप कर रहा हूँ क्या? नए अमेरिका से सीख के आ जाते हैं बहुत सारे। मैंने कहा जितना उसमें टाइम वेस्ट करते हो उतना तुम अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर लगाओ तो अच्छा हो जाएगा। सो मैंने एक दो स्क्रिप्ट को मैंने इन लोगों से कहा, मैंने कहा आज के बाद कभी मुझे वल्गर एक स्क्रिप्ट, तो इसलिए कि वल्गर स्क्रिप्ट मत लाना, वल्गर थी वो स्क्रिप्ट। आप ताज्जुब करेंगे। तो कोई कुछ नहीं, जो है ही नहीं वो बेचारे, कोई अफसोस नहीं है, वल्गर स्क्रिप्ट तो करनी नहीं है। एक फिल्म में एक प्रॉब्लम थी कि उनको 15 दिन नाइट की शूटिंग चाहिए थी, तो मैंने कहा भाई तो कर सकता, मैं नाइट में 5:30 बजे सवेरे उठने वाला आदमी और 8:30 बजे सो जाने वाला आदमी, तो मेरी लाइफ में ब्रेकफास्ट है, लंच है, और शाम के टाइम पर अभी तो हो गया, आज है 2:30-3 बजे लंच लिया हो गया, that's it। घर पे जाके पानी पी के ब्रश करके प्रोफेशनल, that's it। हाँ सवेरे 5 बजे उठ जाए, सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ 8:30 to बस हो गया, 8:30 9:30 बस। बिकॉज क्या करना है, किताब ही एक पढ़नी है, बस हो गया। So no parties, nothing. नहीं अरे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, पार्टी जानी है यार, अरे बाप रे कितने बजे पार्टी तो नहीं, लेकिन कोई इवेंट में अदर देन परफॉर्मिंग अटेंड करना है, बहुत जरूरी है, सोशल ऑब्लिगेशन है। अच्छा वो उनका वेडिंग है, रिसेप्शन है वेडिंग में, तो जो इनविटेशन कार्ड है कितने बजे लिखा है? सर इनविटेशन कार्ड में 7:30 PM ऑनवर्ड्स। अरे बाप रे, ये अच्छा एक बात सुनो, वो किसकी तरफ से आया है? कि सर ब्राइड की तरफ से आया, ब्राइड के फादर आपके। अच्छा सुन, उनको ब्राइड के फादर को फोन करो, भाई तूने 7:30 PM लिखा है, अर्लीस्ट कितना ये लोग आ जाएंगे? आप ताज्जुब करोगे, मैं पहले जाके बैठ गया हूँ और ब्राइड और ब्राइडग्रूम को खा नहीं सुनो, उनको जल्दी कर अन्नू जी आ गए, आशीर्वाद देके चले जाएंगे, आशीर्वाद। अरे बाबा, मैंने कहा तुमको आशीर्वाद देने आया हूँ मैं। कहते सर थैंक यू सो मच। मैंने कहा जेन्युइनली आशीर्वाद ले देना। 1 hour and 45 minutes की ड्राइव करके आया हूँ और 2 hours and 15 minutes मुझे वापस आ जाएंगे। तुम लोग कितने इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैं दिल से तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आपस में गड़बड़ मत करना प्लीज। हाँ मैं इस बूढ़े को तुमने इतना टॉर्चर दिया, देख आके बैठ तैयारी में, तो जाके सो जाने वाला आदमी, और पता चला उस दिन 10:30 बजे सो गए। अब वहां पर वो कह रहे चाय पी लीजिए, नहीं कुछ नहीं पीनी है। एक 1 hour and 45 minutes का रास्ता है, आते वक्त 2 hours 15 या 20 minutes। These are very difficult things for you to do। हाँ लेकिन सोशल ऑब्लिगेशन होते हैं, you have to do that। ऐसा थोड़े कर सकते हैं आप। शो है, इवेंट है, स्टेज परफॉर्मेंस में मेरा शो चल रहा है, शो है, कितने बजे शुरू करोगे? सर 6:30 बजे से शुरू करेंगे। आप ताज्जुब करोगे, आज तक मैंने अपने किसी प्रोड्यूसर को वेट नहीं करवाया। पर आप वेट करते होंगे तो। अरे हर बार किस्मत ही साली इतनी खराब है, वेट मेरे को करना। अभी कितने बजे सर? वो सर होना, अरे मैंने 6:30 का हो गया, लोग आगे होंगे यार। नहीं सर हॉल भर गया सर। कितने? पता चला 7:15 अच्छा सुनो, 7:30 पे शुरू कर रहे हैं, 7:30 पे, एंड आके कह रहे सर एक्चुअली हॉल इज अवेलेबल टिल 10:30। ये टॉर्चर है यार। 7:30 पे शुरू कर रहे हो और मैंने पूरा सीक्वेंसिंग तुमसे। अच्छा बहुत सारी जगह पर ये भी होता है कि अमेरिका वगैरह में, अमेरिका कनाडा में, कि अगर आप लेस देन 2 hours का शो करो ना, दे विल ऑब्जेक्ट। अच्छा। आप सोचो ना, जो आदमी 1.5 घंटे की ड्राइव करके आया, उसको तुम 1.5 घंटे के शो में, अरे क्या सर क्या 1.5 घंटे, अरे अभी 1.5 घंटे, इसलिए उसको 2.5 घंटे का शो। अब वो हॉल का प्रॉब्लम। अब भी ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर शो ही तुमने लेट शुरू किया यार, और वो उनका पार्टनर आके बोल रहे हैं सर आप ऑडियंस का जो ऑडियंस को प्राइस देना था वो बिल्कुल कट डाउन कर दीजिए, वरना तो शो सर रात के 1 बज जाएंगे। फाइनली रात के 12 बज गया शो के अंदर। मेरी गलती नहीं थी भाई, तुमने ही पूरा ऐसा प्लान किया है। उसमें पंडित जी भी आके श्लोक पढ़ रहे हैं, एक आदमी रैप कर रहा है, फलाना कर रहा है, वो तबले के बोल रहे हैं। अरे ये क्या कर रहा है? अच्छा करो ना तो मेरे ऊपर
Why you are pressurizing me to finish the show? पब्लिक का शो है, तो बहुत बहुत लफड़े होते हैं। So much to talk to you, sir. Thank you very much. Thank you. Speaking to me. ये तो किसी से बात की ये नहीं। तो अच्छा, बात- उसके बाद शो के बाद फिर सर शो के बाद थोड़ा सा एक शो के बाद स्ट्रिक्ट ऑफिस से रिटर्न में आता है। हाँ. शो के बाद लास्ट जो गाना चल रहा होगा, वो लास्ट गाना ये पूरा कोरस पूरे कंटेस्टेंट्स गाएंगे, और किस वक्त माइक हाथ में गया आपको पता भी नहीं पड़ेगा। अन्नू कपूर कब स्टेज से नीचे उतरा, कब बॉडीगार्ड्स ने गाड़ी में बिठाया, कब गाड़ी निकल गया, आप गाना ही गा रहे हो भाई। हाँ, फिर कुछ नहीं। नो ड्रिंक, मैं ड्रिंक वैसे भी नहीं करता हूँ, स्मोक नहीं कर, नो ड्रिंक, नो खाना, नो Just डिनर, out. नो इंटरेक्शन। थैंक यू वेरी मच, जाइए बस आपके साथ। अरे यार, एक 70 साल का आदमी 2.5 घंटे तक खड़ा हुआ है तुम्हारे सामने, और क्या चाहिए तुमको? Right. इससे ज्यादा तो नहीं कर। Ji, thank you very much for speaking to me. It is so lovely to talk to you. Thank you.